dear friends, and all my dear students. As you know that our coaching classes, Joshi Group Tuition and Joshi Academy, are running since 1999. We have completed 21 years, and the address is at Narayanpura, Ankur Charasta, Ahmedabad. I am taking the lectures from 11th Commerce, 12th Commerce, and BCom and MCom. During this critical period of lockdown, I believe that students should not suffer. And just we have received the message that exams are going to be taken during May. So this is the solution of management account paper EY BCom Sem 6 Gujarat University. This is the solution of Gujarat University पेपर अप्रैल 2019 लास्ट ईयर का ये पेपर है, उसका सॉल्यूशन है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब क्वेश्चन आए तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है 14 मार्क्स के या 7 मार्क्स के, दैट वी विल सॉल्व. और क्वेश्चन जब दिखता है तो उसको वीडियो स्टॉप करके आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर ले और फिर साथ साथ में आंसर को सॉल्व करें, so that will be easier. And those who are not living in Ahmedabad but wants this type of coaching, they can contact me. So let us start this solution of the paper Management Accounting, Gujarat University paper, April 2019. So the first question is of 14 marks and it is related with standard costing. What is standard costing? That in factory we are producing the material product, we are producing a product. In this product we are using material. Sometimes we use single material, sometimes we use mixed materials, more than one material. तो हमको ये देखना है कि हम पहले से डिसाइड करते हैं फैक्ट्री में कि कितना केजी हम मटेरियल यूज करेंगे. तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस एस्टिमेट करते हैं कि पर केजी की प्राइस कितनी होनी चाहिए. बट जब एक्चुअल रिजल्ट होता है तो वो कुछ डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से वेरिएंस होता है. वेरिएंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. So we have to find out the variances. Variance is based on material or it may be of labor. This is the sum of material. So here we are using three types of material to produce a single product ABCD. The name is ABCD product name, but we are using three type of material ABC, PQR, XYZ. And standard mix is given above, and actual composition of material and cost are given in the second table. So there is a standard loss of 20% and actual production is also given 6400 kg. तो जब standard loss दिया हो तो last इसमें we have to prepare columns. So we can solve this in columnar form and we have to find out these 5 variances: material cost variance, material price variance, material usage variance, mix variance, and yield variance. So how to find these variances? So for that we have to prepare this table. So first column is of material. We are using three type of material. First type of material is ABC, then PQR and XYZ. We have to prepare four columns. First column is AQ, AM, AP. Is actual quantity, actual mix, actual price. और उसको फाइंड कैसे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. एक्चुअल क्वांटिटी केजी में दी है, एक्चुअल प्राइस पर केजी है, उसको मल्टीप्लाई करना है. सेकंड कॉलम AQ, AM, SP. एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस. इसमें एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. थर्ड कॉलम AQ, SM, SP. तो वी हैव टू फाइंड आउट AQ, SM और उसको फिर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. और लास्ट कॉलम में SQ, SM, SP. तो लास्ट कॉलम में जनरली वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जनरली. But when percentage loss is given, we have to find out SQ, SM. So now we'll see how to solve this sum and how to fill up this table first of all. So if you refer the question here,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज गिवन 50 केजी, 20 केजी, 30 केजी, ये स्टैंडर्ड है। और लेकिन नीचे जो एक्चुअल कंपोजिशन है उसमें एक्चुअल क्वांटिटी ये है 4100, 1700 एंड 2600, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी। और एक्चुअल प्राइस सामने दी है पर केजी की। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो ये है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो 4100 into 6, 1700 into 4, 2600 into 9. So this is AQ into AP. In the second column, we have to multiply AQ with standard price. So AQ यही रहेगा 4100, 1700, 2600, but it will be multiplied with standard price जो ऊपर दी है first table में 5, 5 and 10. तो actual quantity को standard price से multiply करेंगे. Now in third column, we have to find out AQSM. How to find AQSM? So this is the formula. AQSM, to find out AQSM, distribute total actual quantity in the ratio of standard quantity. Total actual quantity कौन सी है 4100, 1700, 2600, इसका टोटल करेंगे तो 8400. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में. तो जो फर्स्ट टेबल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 50, 20 एंड 30, तो इसका रेशियो 5:2:3. तो 8400 will be distributed in this ratio 5:2:3. So you will get 4200, 1680, 2520. This is AQSM, actual quantity standard mix. तो थर्ड कॉलम में AQSM को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से. तो स्टैंडर्ड प्राइस यही है 5, 5 एंड 10. तो थर्ड कॉलम इस तरह से आएगा 4200, this 4200 into 5 SP, then 1680 into 5 and 2520 into 10. Now in last column, percentage loss is given, so we have to find out SQSM. तो SQSM कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी ये फॉर्मूला है कि जब परसेंटेज लॉस दिया हो, स्टैंडर्ड लॉस परसेंटेज में दिया हो, तो एक्चुअल प्रोडक्शन अलग से सम में दिया होता है. तो एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस. स्टैंडर्ड लॉस 20% दिया है ये सम में, और एक्चुअल प्रोडक्शन 6400 है. तो इस एक्चुअल प्रोडक्शन जो 6400 है दैट इज आफ्टर 20% लॉस. वी हैव टू फाइंड आउट बिफोर 20% लॉस ग्रॉस प्रोडक्शन कितना होगा. तो दैट ग्रॉस प्रोडक्शन इज SQSM. तो वो 8000 आएगा. और ये 8000 को हम तीनों टाइप के मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो SQ का रेशियो क्या है 5:2:3. तो 8000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:2:3. SQ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल गेट SQSM. तो 4000, 1600 and 2400. तो इन लास्ट कॉलम 4000, 1600 and 2400 को मल्टीप्लाई करना है SP से. तो ये तीनों कॉलम में हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट खाली फर्स्ट कॉलम में एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो तीनों कॉलम में हमने 5, 5, 10 इससे मल्टीप्लाई किया. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि ये 14 मार्क का समय है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 5 वेरिएंसेस. नाउ इट इज सिंपल टू फाइंड 5 वेरिएंसेस. सो दिस इज द टेबल टू सॉल्व द वेरिएंसेस, टू फाइंड द वेरिएंसेस. तो सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा. फिर थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा. फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम material yield variance. Fourth column minus first column, that is material cost variance. And fourth column minus second column is material usage variance. So in exam, if it is asked that find out variances, then you have to find out all the variances. So, and you have to show this separately, variances of each material. तो ABC मटेरियल है, PQR और XYZ 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल है, तो उसके कॉलम बना सकते हो ऐसे. और टोटल का तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, ये सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम. तो 20,500 माइनस 24,600 तो 4100. लेकिन माइनस में आंसर आया तो इट इज अनफेवरेबल, तो यू लिखेंगे. अगर प्लस में आंसर आया तो कंपनी के लिए फेवरेबल है तो F लिखेंगे. तो दिस इज अनफेवरेबल. फिर PQR का है 8500 माइनस 6800, तो इट इज फेवरेबल 1700. एंड XYZ का 26,000 माइनस 23,400, तो 2600 फेवरेबल. और ये तीनों का टोटल करोगे तो 200 फेवरेबल आएगा. या तो फिर ये 55,000 माइनस 54,800 करोगे तो भी आंसर 200. तो दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस. तो 2 minus 1 is material price variance. Then material mix variance. तो 3 minus 2, थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा. फिर 4 minus 3, फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा.
फिर फोर्थ कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा, एंड लास्ट फोर्थ माइनस सेकंड कॉलम you will get material usage variance. So this is the answer, and you have to show this calculation also. कि तुमने AQSM कैसे फाइंड किया और SQSM कैसे फाइंड किया, and then you have to prepare this table to show the variances material wise. So this carries 14 marks. Okay. So now we'll see the next sum. जनरली ये मटेरियल का जो सम होता है उसके और में लेबर का सम आता है, तो यहाँ पर हमने वो सम नहीं किया लेबर का, लेकिन अभी क्वेश्चन जो सेकंड है, क्वेश्चन फर्स्ट है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन चैप्टर का सम है, दैट विल कैरी 14 मार्क्स। उसमें दो टॉपिक होते हैं, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 का चैप्टर है, उसमें दो वेरिएंस आते हैं, एक सेल्स वेरिएंस और एक फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो sales variance carries this 14 marks. So the same table that you have prepared in material variances, you have to prepare the same table for the sales variances. Same table बनाना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तुम, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है कि हमने कितना सेल करना है और उसके सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, और फिर एक्चुअल हमने कितना सेल किया प्रोडक्ट वाइज और सेलिंग प्राइस कितनी है वो दिया है। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस आया, तो ये डिफरेंस कौन से रीजन से आया, उसमें कौन से वेरिएंसेस अफेक्ट करते हैं ये डिफरेंस को। तो ये 5 वेरिएंसेस हमको फाइंड करने हैं, सेल्स वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो फर्स्ट विल बी प्रिपेयर द सेम टेबल दैट वी हैव प्रिपेयर्ड इन मटेरियल वेरिएंसेस। तो फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट लिखेंगे मटेरियल की जगह पे XYZ, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स। कॉलम सेम है 1 2 3 4, AQAM AP, AQAM SP, EQSM SP, SQSM SP। फर्स्ट कॉलम के लिए एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने सेल किया है उसको एक्चुअल प्राइस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से। थर्ड कॉलम में AQSM जो हमने मटेरियल में फाइंड किया था सेम मेथड से फाइंड करेंगे और इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। लास्ट कॉलम में यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के में कोई परसेंटेज लॉस नहीं होता है, तो सीधा SQ इंटू SP करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो if you see the sum, actual selling units ये है, actual units 1500, 1400 and 2100 XYZ के उसके selling प्राइस सामने दी है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में ये आएगा 1500 into 9, 1400 into 15, 2100 into 20। तो दिस इज एक्चुअल सेल्स 76,900। सेकंड कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी यही रहेगी 1500, 1400, 2100, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस ये है 10, 14 and 22। तो 1500 into 10, 1400 into 14, 2100 into 22, actual quantity into standard price। थर्ड कॉलम में how to find EQSM, total actual quantity will be distributed in the ratio of standard quantity। तो total actual quantity means 1500, 1400, 2100, total 5000, और उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इफ यू सी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी में प्राइस नहीं लेना है, क्वांटिटी लेना है। तो 1000, 1600, 1400 इसका रेशियो निकालेंगे, तो 10:16:14 या तो 5:8:7। तो ये रेशियो में हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5000 को 5:8:7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1250, 2000, 1750। तो थर्ड कॉलम में ये AQSM को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस 10, 14, 22 है। लास्ट कॉलम में directly you have to multiply standard quantity with standard selling price. Standard quantity is given, standard selling price is also given, to multiply करते हैं। So we have prepared this 4 columns. Now we have to find out 5 variances, sales variances find करने हैं। ये एक ऐसा वेरिएंस है जो इनकम का वेरिएंस है, तो इसलिए इसमें हम 2 - 1 की जगह 1 - 2 करेंगे। तो जो 1 - 2 करेंगे तो we will get sales price variance। 2 - 3 करेंगे तो sales mix variance। 3 - 4 sales volume variance है। Then 1 - 4 sales value variance, and 2 - 4 sales sub volume variance। So now first sales price variance, तो
फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, तो 13,500 माइनस 15,000, तो ये एक्स का वेरिएंस आया, सेल्स प्राइस वेरिएंस, प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया माइनस 1500। अगर आंसर माइनस में आया इट मींस इट इज अनफेवरेबल, तो ब्रैकेट में यू लिखेंगे। देन वाई का 21,000 माइनस 19,600, तो इट इज फेवरेबल 1400, and Z 42,000 minus 46,200 unfavorable, total 4,300 unfavorable. So this is sales price variance. सेल्स मिक्स वेरिएंस फाइंड करने के लिए सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम करना है, तो सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम सेल्स मिक्स वेरिएंस, 3 minus 4, so this is sales sub volume variance. Actually this is here this should be sub volume and fifth should be sales volume variance, so you will get sales sub volume variance 3 minus 4. Then 1 minus 4, उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता था, इसमें सेल्स वैल्यू वेरिएंस आएगा, तो 1 minus 4 is sales value variance and 2 minus 4 is a sales volume variance. 2 minus 4 is a volume variance. So this is the answer. So this carries 14 marks and it is same as material. अब इसके ऑप्शन में पर अभी कभी कभी क्या होता है कि सेल्स वेरिएंस का ये जो सम दिया है 14 मार्क्स का, उसमें सेल्स प्राइस की जगह पे कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी दी होती है और सेलिंग प्राइस भी दी होती है, तो यू हैव टू फाइंड आउट मार्जिन वेरिएंस, तो प्रॉफिट बेस पे हमको सम करना होता है। तो जस्ट खाली चेंज ये होगा कि हम जो है एक्चुअल क्वांटिटी के एक्चुअल सेलिंग प्राइस करते हैं उसकी जगह एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट एंड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। हाउ टू फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट मीन्स स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट सम में दी होगी, तो पूरा सम मार्जिन बेस पे होगा, मार्जिन मीन्स प्रॉफिट बेस पे। तो यहाँ पर जो चेंज क्या होगा कि सेल्स प्राइस वेरिएंस की जगह सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस आएगा, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, इस तरह से बीच में मार्जिन वर्ड यूज होगा प्रॉफिट के लिए। इसके ऑप्शन में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का या तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के सम आते हैं, तो ये जो लास्ट ईयर का ये पेपर है उसमें 7 मार्क्स का फिक्स ओवरहेड का सम पूछा था और 7 मार्क्स का वेरिएबल ओवरहेड का सम पूछा है। तो दिस इज द sum of fixed overhead variances. We have to find out 4 fixed overhead variances in this sum. तो मंथली आवर्स दिए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, यूनिट्स भी दिए हैं, डेज भी दिए हैं और फिक्स ओवरहेड रुपीस में भी दिया है। सो हाउ टू फाइंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, तो वो भी हम चार्ट मेथड से करेंगे। तो चार्ट मेथड में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, सेकंड बजटेड या तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, थर्ड कॉलम में अगर जब तक आवर्स दिया हो तो हम आवर बेस से करेंगे, और ये यूनिट बेस से भी कर सकते हो, तो आवर बेस से करना हो तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और फोर्थ कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो दिस आर द 4 कॉलम्स। अगर हम यूनिट बेस से करते हैं तो थर्ड और फोर्थ कॉलम इंटरचेंज करना पड़ेगा। नाउ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, to see the actual fixed overhead is 6400 and standard fixed overhead is 6000, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 6400 है, स्टैंडर्ड बजटेड फिक्स ओवरहेड 6000। थर्ड कॉलम में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इफ यू सी द एक्चुअल आवर्स, तो मंथली आवर्स में एक्चुअल 3150 है, बट स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज नॉट गिवन, वो दिया नहीं होता है, वो हमको फाइंड करना होता है। तो हाउ टू फाइंड दिस स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कितने हैं 6000 और अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स भी दिए हैं 3000, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 रुपीज है वो पर आवर का रेट आया, एस आर पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो थर्ड कॉलम में एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स, तो 1600। लास्ट कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स, 3000 दिया है, but here units are also given, so when units and hours both are given, then in fourth column we have to find out revised standard hours। जब दो मेजरमेंट दिए होते हैं, यूनिट्स एंड आवर्स दिए हो या डेज एंड आवर्स दिए हो, तो लास्ट कॉलम में हमको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से यूनिट्स, जब स्टैंडर्ड यूनिट्स 2000 दिया है तो स्टैंडर्ड आवर्स 3000 है, तो अगर एक्चुअल यूनिट्स 2200 है तो उसका रिलेटेड आवर्स कितना आएगा, तो this 3300 is a revised standard hours।
मीन्स 2000 यूनिट्स के लिए 3000 स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, अभी 2200 का कितना, 3300 स्टैंडर्ड आवर्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीज। नाउ विल फाइंड वेरिएंसेस। पर इसमें ये एस आर पर डे वो भी जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड रेट पर डे के लिए। तो we can find out these 5 variances in this sum. First is a expenditure variance या तो budgeted variance, that is 2 minus 1. Second column minus first column, 6000 minus 6400 is the expenditure variance. Minus 400 आया तो ये unfavorable. 3 minus 2 करोगे तो capacity and calendar variance combined मिलेगा, तो 6300 minus 6000, तो जो 300 फेवरेबल आंसर आया, इट इज ए कंबाइंड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी एंड कैलेंडर। कैलेंडर वर्ड कब यूज करना है, जब डेज दिए हो, तो ये सब में डेज भी दिए हैं, तो कैपेसिटी एंड कैलेंडर ये कंबाइंड मिक्स मिला हमको। नाउ हाउ टू सेपरेट दिस, तो उसमें कैलेंडर वेरिएंस फाइंड करने की फॉर्मूला है एस आर पर डे, स्टैंडर्ड रेट पर डे इनटू ब्रैकेट में एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, मींस एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड डेज। तो एस आर पर डे हमको किस तरह से फाइंड करना है, जैसे तो हमने एस आर पर आवर फाइंड किया था, उसमें बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड किया, तो यहाँ बजटेड ओवरहेड को बजटेड डेज से डिवाइड करेंगे, तो 6000 डिवाइड बाई 25, तो रुपीज 240 पर डे। तो एस आर पर डे 240, ब्रैकेट में एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, तो डेज एक्चुअल 27 है, बजटेड 25 है, तो 480 फेवरेबल, दिस इज कैलेंडर वेरिएंस। तो टोटल 300 में से 480 फेवरेबल जो है वो कैलेंडर वेरिएंस है, तो रिमेनिंग जो बचा वो कैपेसिटी वेरिएंस आएगा। तो 300 माइनस 480, 180 माइनस में इट इज अनफेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस। तो टोटल कैपेसिटी एंड कैलेंडर वेरिएंस में से हम कैलेंडर माइनस करेंगे, रिमेनिंग इज कैपेसिटी वेरिएंस। नाउ एफिशिएंसी वेरिएंस 4 minus 3, फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, यू विल गेट एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर फोर्थ कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम करोगे तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा, और फोर्थ कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम वेरिएंस। तो दिस आर 5 वेरिएंसेस वी कैन फाइंड आउट। तो कभी कभी ये सब 14 मार्क्स का भी पूछे थे, जब ये सब वेरिएंस पूछे हो, तो ये सेल्स ओवरहेड के जो ऑप्शन में ये सब है फिक्स ओवरहेड का, दिस कैरीज 7 मार्क्स। नाउ with this question, the second question is also asked of 7 marks. It is of variable overhead. ये जो हमने सम किया वो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस फाइंड किए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन ऑप्शन ऑफ सेल्स वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, तो इसमें हमको ये 3 वेरिएंसेस फाइंड करना है। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के लिए हमको 4 कॉलम बनाने होते हैं, इसमें हम 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो 3 कॉलम कौन से हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, मींस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। सेकंड कॉलम में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और थर्ड कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स, you will see the some question, actual hours are 6300 and actual rate is not given, but total actual expenses are given. So instead of AH into AR you can write total actual variable overhead 22050, और अगर एक्चुअल रेट फाइंड करना हो तो 22050 डिवाइड बाय 6300 करोगे तो एक्चुअल रेट मिलेगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टोटल एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड कॉलम में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल आवर्स है 6300, अभी एसआर नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड रेट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड है 18000, स्टैंडर्ड आवर्स है 6000, तो 18000 अपॉन 6000 3 रुपीज, तो 6300 इंटू 3। एंड लास्ट कॉलम इज एस एच इंटू एस आर, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअली इट इज गिवन 6000, लेकिन जब भी यूनिट्स और आवर्स दोनों दिए हो तो हमको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो जब ऐसे दो मेजरमेंट होते हैं यूनिट्स एंड आवर्स, वी हैव टू फाइंड आउट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। अगर ये सब में आवर्स ना दिए हो, खाली यूनिट्स दिए हो, तो हम यूनिट बेसिस हम करेंगे, तो उसमें सेकंड एंड थर्ड कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा और हमको रेट पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ हम रेट पर आवर फाइंड करेंगे, तो रेट पर आवर हमने तो फाइंड कर दिया, तो लेकिन अभी हमको रिवाइज एसएच फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, यूनिट के हिसाब से। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं 4000, उसके सामने स्टैंडर्ड आवर्स 6000 है, तो 4000 यूनिट्स पे 6000 आवर्स, तो
एक्चुअल यूनिट्स 4400 है, उस पर कितने आवर्स, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मिलेगा 6600 लास्ट कॉलम में, और उसको इंटू एस आर करना है, एस आर 3 रुपीज़ है, तो 19,800 आया। अब इसमें 3 वेरिएंस फाइंड करना है, तो 2 - 1 जो है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, 3 - 2 एफिशिएंसी वेरिएंस, और 3 - 1 करोगे तो फिक्स वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस मिलेगा। तो इस तरह से, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2 - 1 18,900 -22,050 आंसर -3150, दैट इज अनफेवरेबल, आगे रुपीस की साइन होनी चाहिए। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस है 3 - 2 900 फेवरेबल, and 3 - 1 variable overhead cost variance, so it is 2250 minus में है तो unfavorable. So this carries 7 marks, and this in which you have to find out these 3 variances. Now next one. Now question number 3. Question 3 में कैपिटल बजटिंग का सम आता है, उसके ऑप्शन में उसके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम आता है। तो यहाँ ये लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें ये 14 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग का ही सम पूछा था, उसके और में 7 मार्क्स के टाइम वैल्यू ऑफ मनी और प्लस थियरी पूछी है। तो ये कैपिटल बजटिंग का सम है जिसमें तुमको पेबैक पीरियड फाइंड करना है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो वी आर हैविंग 2 मशीन्स, मशीन ए एंड मशीन बी, एंड अभी इस कैपिटल बजटिंग क्या है कि जब हम ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरी परचेज करने के लिए, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सा मशीन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा वो मशीन हम परचेज करते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है कैपिटल बजटिंग की, 4 और 5 मेथड्स है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मशीन परचेज करना चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। तो दोनों मशीन की कॉस्ट 10 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ भी दोनों की सेम है 5 इयर्स, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, टैक्स का रेट, इनकम टैक्स का रेट 50% है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, अर्निंग बिफोर डेप्री एंड टैक्स, ये जो प्रॉफिट, अर्निंग मींस प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, मींस ये जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर डेप्री एंड टैक्स दिया है मशीन ए और बी का। तो वी हैव टू एडवाइज दैट विच मशीन शुड बी परचेज। तो पहले पेबैक पीरियड फाइंड करना है और फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले मशीन ए का टेबल बनेगा, फिर मशीन बी का टेबल बनेगा। दोनों की कॉस्ट प्राइस 10 लाख है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये सब में तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट 10 लाख दे दिया है, अदरवाइज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इंक्लूड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन अदर एक्सपेंसेस प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस इन्वेंटरी रिसीवेबल। अगर ये सब कुछ दिया हो तो सबको ऐड करोगे वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ कुछ नहीं दिया है, जस्ट खाली कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, तो वो 10 लाख है। नाउ वी विल फाइंड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला है C माइनस S अपॉन N, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स। 10 लाख कॉस्ट प्राइस है ईच मशीन की, स्क्रैप वैल्यू 0 है, 5 ईयर्स है, तो 2 lakhs इज ए डेप्रिसिएशन पर ईयर, और दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कॉमन है 2 lakhs, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस 10 lakhs है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल। टेबल में कौन से कॉलम प्रिपेयर करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। ये समय तुमको प्रॉफिट कौन सा दिया है, ये दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। तो इसमें से हम डेप्री माइनस करेंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्री, फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो लास्ट में डेप्री को प्लस करना है, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। दिस प्रॉफिट इज यूजफुल टू फाइंड पेबैक पीरियड। तो कॉलम्स विल बी लाइक दिस। मशीन ए के कॉलम है ये, ईयर्स दिया है, जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है तुम्हारे पास। तो अभी इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्री का कॉलम आएगा। तो ये कॉलम कैसे बनाना है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ट, कि तुमको कौन सा प्रॉफिट दिया है। अगर तुमको प्रॉफिट आफ्टर डेप्री लिया हो तो फिर एक कॉलम ये आएगा, सेकंड कॉलम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, थर्ड कॉलम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री आएगा। यहाँ तुमको चारों कॉलम बनाने, 1 2 3 एंड 4। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्री इज गिवन, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्री आएगा। तो डेप्रिसिएशन 2 lakhs है,
सब में से 2 लाख माइनस किया तो ये आंसर है 3 लाख 3 लाख 2 लाख 2 लाख 1 लाख। अभी इसमें से टैक्स माइनस करना है, तो इनकम टैक्स का रेट दिया है 50%। तो ये सब जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्री आया उसका 50% टैक्स माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लिखेंगे। अगर 40% टैक्स हो तो यहाँ 60% लिखना है रिमेनिंग अमाउंट। तो 50% टैक्स है तो हाफ टैक्स कट जाएगा, रिमेनिंग हाफ इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इसका हाफ करके यहाँ लिखा है 50% टैक्स है इसलिए। और फिर इसमें वापस हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसमें सब में 2 लाख प्लस कर दिया हमने, तो आंसर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैक्स। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड के लिए हमको ये कॉलम चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैक्स। व्हाट इज पेबैक पीरियड? नंबर ऑफ इयर्स विदिन व्हिच कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। कितने साल में हमारा ये जो कॉस्ट 10 लाख है वो रिकवर होगा, वो पेबैक पीरियड है। और उसके लिए लास्ट कॉलम देखना है, तो उसमें फर्स्ट ईयर का 3,50,000, सेकंड ईयर 350, थर्ड ईयर 3 लाख है। अगर ये 3 इयर्स का टोटल करोगे तो एग्जैक्ट 10 लाख हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जैक्ट 3 इयर्स में रिकवर हो जाता है। तो अवर पेबैक पीरियड इज 3 इयर्स। तो 10 लाख हमारा कितने साल में रिकवर होता है, वो पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड जो मशीन का कम है वो प्रॉफिटेबल। एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी ये फॉर्मूला है, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पूछा हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ हमको प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट 5 साल का पहले 50,000 है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एवरेज इन्वेस्टमेंट। पर अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मींस कॉस्ट प्राइस प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। स्क्रैप वैल्यू ना हो तो 0 लिखना है, तो 10 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 लाख आएगा अपॉन में। तो आंसर इज 22%। तो ये रेट ऑफ रिटर्न आया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अगर ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न पूछा हो तो अपॉन में हम खाली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू प्लस नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड भी नहीं करेंगे। और एक ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री का जो कॉलम है उसमें लास्ट कॉलम में लास्ट ईयर में क्या प्लस करना है, स्क्रैप वैल्यू, इन्वेंटरी एंड वर्किंग कैपिटल। अगर दिया हो तो ये यहाँ पर प्लस होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री के लास्ट ईयर में। तो ये समय कोई स्क्रैप वैल्यू या इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल नहीं है। नाउ सेम टेबल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मशीन बी, और मशीन बी का भी हमको पेबैक पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, डेप्रिसिएशन सेम है 2 लाख। ये चार्ट तो ऑलवेज याद रखना है कैपिटल कोई भी सम के लिए। मशीन बी, मशीन बी का प्रॉफिट तुमको दिया है बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये सब में से हम 2 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्री आएगा। उसमें से 50% टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और फिर इसमें डेप्री वापस प्लस करना है, तो यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। अभी पेबैक पीरियड, तो पेबैक पीरियड हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, तो कितने साल में कवर होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्री का जो ये कॉलम है उसमें देखेंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख है, सेकंड ईयर का 340, तो टोटल हुआ 640। अगर हम 640 में 480 प्लस करते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है। इट मींस के आवर पेबैक पीरियड इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ईयर। तो फ्रैक्शनल पीरियड फाइंड करना पड़ेगा कि 2 पॉइंट क्या है, सेकंड ईयर के बाद कितना पीरियड है। तो फ्रैक्शनल पीरियड फाइंड करने की फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख माइनस प्रॉफिट अप टू 2 इयर्स, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में है, और अपॉन में प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर। अगर फोर्थ और फिफ्थ के बीच में होता तो यहाँ प्रॉफिट अप टू 4 इयर्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ फिफ्थ ईयर आता। तो 10 लाख माइनस प्रॉफिट अप टू सेकंड ईयर, 2 साल का प्रॉफिट प्लस करो तो 640। इट मीन्स कभी और कितना कवर करना रह गया है उसको हम डिवाइड करेंगे थर्ड ईयर के प्रॉफिट, तो 0.75 आया। तो दिस इज द फ्रैक्शनल पीरियड आफ्टर सेकंड ईयर। तो पेबैक पीरियड इज 2.75 ईयर्स। तो ये पेबैक पीरियड है। फर्स्ट मशीन का पेबैक पीरियड कितना था, 3 ईयर्स, और ये है 2.75, तो ये कम है। तो अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड मशीन भी परचेज करना चाहिए। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अगेन 6,25,000 मीन्स रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमको ये कॉलम नहीं चाहिए,
लास्ट वाला ये चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट का टोटल करके उसको डिवाइड बाय 5 करो तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अपॉन में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस स्क्रैप अपॉन 2, स्क्रैप नहीं है तो डिवाइड बाय 2 जीरो करके तो 25% आएगा। तो मशीन ए से मशीन बी का रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि एज पर पेबैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सेकंड मशीन इज प्रॉफिटेबल। दोनों मेथड से सेकंड मशीन प्रॉफिटेबल है तो सेकंड मशीन शुड बी परचेज। दिस सम कैरीज 14 मार्क्स। इसके और में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम, दिस इज द सम, दिस कैरीज 7 मार्क्स और बाकी का 7 मार्क्स की थियरी है। तो मिस्टर Prayas wants to invest rupees 5 lakhs for 3 years at 12% compound interest per annum. He has 3 options. यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करनी है। और हमको पैसे जो डिपॉजिट करने हैं या लेने हैं वो एवरी मंथ एवरी ईयर लेने हैं या वन टाइम। हियर वी हैव डिपॉजिटेड 5 lakhs वन टाइम एंड वी विल गेट आफ्टर 3 years इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एग्रीगेट अमाउंट। तो जब हम एक ही बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमको पैसे चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करनी है। और यहाँ कंपाउंडिंग का ऑप्शन दिया है कि इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड होता है, एनुअली भी होता है या तो सेमी एनुअली होता है या तो क्वार्टरली होता है। तो ये तीन में से कौन सा ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना चाहिए। और नीचे ये फैक्टर वैल्यू दी है तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये फैक्टर वैल्यू को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। As amount is invested only once and future values to be found out, so compound interest formula will be used. Compound interest की formula ये है, A equal to P bracket में 1 plus R के नीचे 100K raised to NK. A means aggregate amount which will be received in future with interest. A का मतलब होता है principal plus interest. P means principal amount जो भी आज हम डिपॉजिट कर रहे हैं. R means rate of interest. K क्या होता है, अगर एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड होता हो तो K1 आता है। अगर बाई एनुअली, सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली में 6 मंथ्स के बाद, तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो K2 आएगा। क्वार्टरली हो तो 3 मंथ्स के बाद, इट मीन्स के एक साल में 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो K4 आएगा। तो पहले पहले फर्स्ट ऑप्शन में एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो K1 लेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 5 lakhs ब्रैकेट में 1 + 12/100 इंटू 1, K1 है, और रेस टू 3 इंटू 1, 3 years इंटू 1, NK है इसलिए। तो 1.12 रेस टू 3 करना है तो कैल्सियम में कर सकते हो 1.12 इंटू इक्वल टू 2 टाइम प्लेस कर सकते हो 5 lakhs इंटू दिस। और यहाँ जो तुम ये 1.12 रेस टू 3 करो, रेस टू 10 करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें जस्ट यू हैव टू टेक टोटल 4 डिजिट, फिफ्थ डिजिट नहीं लेना है। तो फिफ्थ डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे 1 ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दिस इज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ 7,02,500। तो अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है तो 3 साल के बाद 5 लाख का हमको 7,02,500 मिलेगा। इट मीन्स की इंटरेस्ट फाइंड करना हो, ये एग्रीगेट अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। इसमें से प्रिंसिपल 5 lakhs माइनस करोगे बाकी का इंटरेस्ट आएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या था, सेमी एनुअली कंपाउंड करना है मीन्स हाफ ईयरली। तो के की जगह पे 2 लेना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम, के की जगह पे 2 लेंगे तो अपॉन में 200 हो जाएगा और पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7,09,000 एग्रीगेट अमाउंट। थर्ड ऑप्शन था क्वार्टरली, तो के इक्वल टू 4 लेना है, तो फॉर्मूला सेम, तो 3 years इंटू 4 रेस टू 12 हो जाएगा और 12/400 तो 1.03 आएगा, 1 + 12/400 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 7,13,000 आता है। तो ये तीनों में से लास्ट ऑप्शन में हाईएस्ट अमाउंट मिलता है तो थर्ड ऑप्शन इज मोर प्रॉफिटेबल, इट शुड बी सिलेक्टेड। दिस कैरीज 7 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अगेन कैपिटल बजटिंग का होता है। तो कैपिटल बजटिंग का वेटेज ज़्यादा है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। 30 क्वेश्चन 3 में कैपिटल बजटिंग आता है, दैट कैरी 7 मार्क्स और 14 मार्क्स।
और क्वेश्चन 4 में भी 40 मार्क्स का ये सवाल। तो इसमें मशीन एक्स और मशीन वाई है, दो मशीन है, उसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मशीन परचेज करना चाहिए। नेट प्रेजेंट, इसमें दो फॉर्मूले यूज करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो क्वेश्चन 3 में हमने फाइंड किया था, वो भी कैपिटल जीडी की फॉर्मूला थी। और उसकी दो मेथड और है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये दोनों मेथड्स हमको फाइंड करना है कि कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मशीन का 11 लैक्स है एक्स का, वाई का 15 लैक्स। यहाँ पर भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल नहीं है। अगर इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल दिया होता तो हम कॉस्ट पे इसमें प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर डेप्री एंड टैक्स, मीन्स डेप्री टैक्स दोनों माइनस हो चुका है। और फर्स्ट विल प्रिपेयर टेबल फॉर मशीन एक्स। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 11 लैक्स, डेप्रिसिएशन के लिए सी माइनस एस अपॉन एन करेंगे तो 2,20,000 डेप्रिसिएशन आएगा। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कौन सा है, आफ्टर डेप्री एंड टैक्स, मीन्स डेप्री भी माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो गया है। तो जस्ट अभी हमको खाली डेप्री प्लस करना है तो हमको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉलम यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो प्रॉफिट दिया है वहां से कॉलम स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आएगा, ईयर का कॉलम आएगा, फिर तुमको ये प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर डेप्री एंड टैक्स का कॉलम दिया है। और फिर उसमें हम डेप्री प्लस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री का कॉलम आएगा। उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा। तो डिस्काउंट फैक्टर सब में ईयर वाइज दिया होता है। तो जैसे देखो ये सब में नीचे यहाँ दिया है 5 ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर दिया है, और डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अगर ये डिस्काउंट फैक्टर कैलसी में फाइंड करना हो तो 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, 10% है तो 1 डिवाइड बाय 110, और परसेंटेज प्लेस करते जाओ तो ये डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा। 12% हो तो 1 डिवाइड बाय 112%, परसेंटेज की साइन प्लेस करते जाओ। जनरली डिस्काउंट फैक्टर दिया होता है सामने। तो पहले ये प्रॉफिट जो है वो आफ्टर डेप्रिंग टैक्स है, तो इसमें हमको डेप्री प्लस करना है। तो 2,20,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये सब में हम प्लस करेंगे 2,20,000 फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड कॉलम मिलेगा। तो 80,000 प्लस 220 तो 3 लैक्स, 380 प्लस 220 तो 6 लैक्स। फिर डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है और इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा। अभी एनपीवी फाइंड करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसकी फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल लास्ट कॉलम का टोटल आया 18,51,700। उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 11 लैक्स माइनस करेंगे तो 7,51,700, ये एनपीवी आया। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो ये मशीन प्रॉफिटेबल है, लेकिन यहाँ हमको एक्स और वाई दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों में से जिसकी एनपीवी ज़्यादा है वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर का जो कॉलम है उसके आगे लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू, इन्वेंटरी, वर्किंग कैपिटल प्लस करना पड़ता है अगर दिया हो तो प्रॉफिट के अंदर। नाउ विल फाइंड पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी में जो फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस की जगह डिवीजन की साइन करोगे तो वो पीआई की फॉर्मूला हो जाएगी, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 1.68। अगर ये आंसर 1 से ऊपर है तो इट इज प्रॉफिटेबल। तो ये हमने मशीन एक्स का फाइंड किया। अभी सेम ऐसे ही मशीन वाई का फाइंड करना है। मशीन वाई की कॉस्ट प्राइस 15 लैक्स है, डेप्रिसिएशन 15 लैक्स माइनस 0/5 3 लैक्स आएगा। अभी प्रॉफिट जो तुमको दिया है वो आफ्टर टैक्स दिया है, तो उसमें डेप्री प्लस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बिफोर डेप्री आएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्री एंड टैक्स का कॉलम है, उसमें हम डेप्री प्लस करेंगे तो डेप्रिसिएशन 3 लैक्स है, तो 5 लैक्स प्लस 3 लैक्स तो 8 लैक्स, 4 लैक्स प्लस 3 लैक्स तो 7 लैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। लास्ट ईयर में हमको स्क्रैप वैल्यू, इन्वेंटरी, वर्किंग कैपिटल हो तो प्लस करना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर दिया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा। और अभी इसमें भी एनपीवी फाइंड करना है, तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये 23,45,900 माइनस 15 लैक्स, तो 8,45,900। तो मशीन एक्स से इसका एनपीवी ज़्यादा है,
तो अकॉर्डिंग टू एनपीवी मेथड मशीन वाई शुड बी परचेज। पीआई फाइंड करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 1.56 आता है, लेकिन फर्स्ट मशीन का इससे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू पीआई मशीन एक्स शुड बी परचेज। तो देखो यहाँ आंसर ऐसे लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन, एज पर एनपीवी मशीन वाई शुड बी परचेज ड्यू टू इट्स हायर एनपीवी। एज पर पीआई मशीन एक्स शुड बी परचेज क्योंकि पीआई एक्स का ज़्यादा है। तो एनपीवी, पीआई, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये सब जिसका ज़्यादा है वो मशीन परचेज करना चाहिए, और खाली पेबैक पीरियड में जिसका कम है वो हमको परचेज करना चाहिए। तो दिस इज कैपिटल बजटिंग। नाउ इसके और में जो क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किया वो 14 मार्क्स का था, उसके और में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है 7 मार्क का, और 7 मार्क की थियरी है। तो क्वेश्चन जो 7 मार्क का पूछा है उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो इसमें तो मशीन की प्राइस, एक ही मशीन है उसकी प्राइस है 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स, और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट कुछ मेंशन नहीं किया है, बिफोर डेप्री आफ्टर डेप्री है, टैक्स के भी कोई परसेंटेज नहीं दिए है, तो हमको यही प्रॉफिट को लेना है, यूज करना है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मीन्स हमको फाइंड करना है कि हमारा एग्जिट रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। तो 15% और 20% दो डिस्काउंट के परसेंटेज दिए हैं। अगर ये परसेंटेज ना दिए हो तो 10, 15, 20, 25 ऐसे परसेंटेज लेने चाहिए, और एनपीवी फाइंड करना चाहिए। और जब तक एनपीवी नेगेटिव नहीं आता है तब तक हमको परसेंटेज आगे बढ़ाते जाना चाहिए। यहाँ 15 और 20% दिया है तो हायर परसेंटेज का एनपीवी नेगेटिव आएगा। हम दोनों के एनपीवी फाइंड करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू 15 का और 20% का। तो टेबल ऐसा बनेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, और ईयर है, प्रॉफिट दिया हुआ, कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट, डिस्काउंट फैक्टर 15%। तो 15% का डिस्काउंट फैक्टर दिया है, अगर ये एलसी में फाइंड करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 115 परसेंटेज प्लेस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 इंटू 0.87, ये आएगा आंसर 30450। तो इस तरह से 15% का टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये आया। 20% का डिस्काउंट फैक्टर दिया है तो 35,000 इंटू 0.833 तो 29155, 25,000 into 0.694 17350, ये discounted cash flow है टोटल। thereafter दोनों का एनपीवी फाइंड करना है, 15% का एंड 20% का। तो 15 एनपीवी की फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1,06,075 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो डिफरेंस आया 6075। ये सी है, फॉर्मूला में हमारा एबीसीडी है तो उसमें ये सी है, इसको सी डिनोट करते हैं। और जो हायर परसेंटेज का जो एनपीवी है उसको हम डी डिनोट करते हैं, बट इट इज इन मॉड्यूलस, इसके नेगेटिव है तो भी हमको पॉजिटिव लेनी है। तो एनपीवी है 94330 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, नेगेटिव है लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। अभी ए क्या होता है, लोअर परसेंटेज है वो ए है और हायर परसेंटेज वो बी है। तो A means lower percentage, B means higher percentage, C means NPV at lower percentage, and D means positive NPV at higher percentage. Now this is the formula. Internal rate of return की formula है A plus C upon C plus D into B minus A. A means lower percentage 15. C means NPV at lower percentage, yes 6075. Upon C plus D. C means NPV at lower percentage plus NPV at higher percentage, लेकिन ये नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, दोनों को ऐड करना है। B minus A, higher percentage minus lower percentage. तो ultimately we get 17.59%. ये जो तुम्हारा आंसर है वो जो गिवन दो परसेंटेज हमने यूज किए है उसके बीच में आना चाहिए। तो 15 और 20 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो मोस्टली द पेपर इज सॉल्व। और अभी जो एमसीक्यू है तो वो भी इच क्वेश्चन में एमसीक्यू का वेटेज होता है, तो दैट शुड बी सॉल्व योरसेल्फ। थियरी जो है वो भी लर्न करनी चाहिए आपको। तो
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू एनी डाउट तो मेरा फ़ोन नंबर है, उसको कॉल कर सकते हो। अभी मेरा 12th के कॉमर्स के क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी है लॉकडाउन पीरियड में, और अभी ऐसा ही चला तो अभी कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर सपोज़ कोई अहमदाबाद में नहीं है तो फिर भी अगर ऑनलाइन कोचिंग अगर उसको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, रीज़नेबल प्राइस फीस में स्टार्ट कर सकता है। ओके,